Buy bank cash column 1290. Is this clear? Then deposited into bank 8,000. Entry is contra. Bank to cash. To cash bank column, buy bank cash column 8,000. Check received from Prem dishonored. So buy Prem bank column 1290. Mila? Buy Prem bank column 1290. Then purchase goods from Indira 8,000 at 8% TD and paid half the amount immediately. Entry should be, I think, buy purchase in the cash column 3680. Buy purchase cash column 3680. Aaram diya. Bank paid insurance premium under our standing instruction 3,900 and collected interest on investment. So buy insurance bank column 3,900 and 2 interest on investment bank column 7,300. Is that right? Check issued to Aruna was dishonored. So to Aruna, debit side to Aruna, bank column 10,600. Is that right? Lucky Stores directly deposited into our bank. So to Lucky Stores, bank column 19,000. Is that right? Then you got paid salary by check. So by salary, bank column 11,400. Withdrew by check 4,000 for office use, 3,000 for personal use. जो office use का उसका entry क्या होता है? Contract. To bank cash column 4,000. Buy bank cash. Sorry. To bank cash column, buy cash bank column 4,000. Then you got drawings. So buy drawings bank column 3,000. Buy drawings bank column 3,000. बराबर है? उसके बाद deposited into bank cash in excess of 10,000. You know how to do this? Debit minus credit minus 10. कितना बचता है surplus? 6,64,000 is what you are getting, that excess money. 6,64,000. 6,86,000 और 6,86,000. हाँ वही कुछ कर ला. 6,64,100 कि 6,64,000 ना? Exact. Debit minus credit minus 10,000. That's 6,64,000. That much money you are putting it into bank. So what will be your entry? Contra. Bank to cash. To cash bank column buy bank cash column. To cash bank column buy bank cash column. Amount is 6,64,000. And then you will get the balance. So buy balance CD in cash it is 10,000 and in bank it is 6,92,000. Is that right? Closing balance of bank 692,000. आया कि नहीं? 692,000 closing balance in bank. And how much you are depositing that contra wala part? 6,64,000. Sorted? बढ़े आगे? Totals. Cash का total is 6,86,970. And bank का total is 726,190. 726,190 बराबर छे. इस पे कर लेना मोबाइल पे ना, बड़ा बड़ा अभी किधर. नेक्स्ट वाला पेपर ले लो, लास्ट पेपर फटाफट. पेपर नंबर 3 2017 जर्नल्स. फॉलोइंग वेयर द बैलेंस इज फाउंड इन द बुक. जब भी ऐसा बैलेंस दिया है जर्नल में, क्या करना है आपको? ओपनिंग एंट्री एसेट और लायबिलिटी की लिस्ट दी गई है. ओपनिंग एंट्री देखो, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सॉरी ट्रेड मार्क्स डेबिट 20,000, मशीनरी डेबिट 1 लाख, लोन टू रीटा डेबिट 30,000, कैश डेबिट 20,000, टू क्रेडिटर्स 5, टू बिल्स पेबल 15, टू लोन फ्रॉम राम 50,000, टू कैपिटल इज 1 लाख रुपीज. एग्जैक्ट. इज दैट राइट? बहुत बढ़िया. 5,000 cash was stolen. What is the entry? Loss by theft to cash 5,000. Very good. Then purchase goods from Somesh 50,000 10% TD and paid 1/5 of the amount by cash. Somesh allowed 5% CD. Entry should be purchase to Somesh to cash to discount received. Purchase में 45 to Somesh 36 to cash 8820 to discount received 180. Then Shri Venkatesh transferred 10,000 from his private bank to business bank. Entry should be bank to capital 10,000. Is that right? Yes. Bank to capital. Bank current account में आया. Bank to capital. Then Rita made payment of half the amount of loan taken by her. Entry should be
Cash account debit to loan to Rita 15,000. Cash account debit to loan to Rita 15,000. Is that right? Or else you can write cash to Rita's loan also. अगर ऊपर Rita's loan लिखा है तो नीचे भी Rita's loan चलेगा. Cash to Rita नहीं लिख सकते. Rita नहीं लिख सकते यार. लोन तो क्रेडिटर डेटर हो जाएगा. Loan में. खाली रीटा लिखोगे ना तो वो परचेज सेल वाला क्रेडिटर डेटर हो जाएगा. समझा? ऊपर देखो ना, इधर ओपनिंग एंट्री में लोन टू रीटा दिया हुआ है. ये रहा 30,000 रुपया. उसका आधा 15,000 रुपया वापस किया उसने. सेम अकाउंट यूज करना है जो ऊपर यूज किया. गॉट इट? कैश टू लोन टू रीटा 15,000. देन half of the goods purchased from Somesh were sold to Monica after charging 10% profit on list price. Can you see that? इधर आपको list price पे करना पड़ेगा because it is specified. Okay? So यहाँ पर आएगा Monica to sales 27,500. 27,500. Monica to sales. List price. What is list price? MRP. Gross price. MRP. उस पे प्रॉफिट लगाने को बोल रहा है. नॉर्मली किस पे लगाते हो आप? कॉस्ट पे. इधर स्पेसिफाई करके दिया है ना लिस्ट प्राइस. इसके लिए लिस्ट प्राइस लेने का. तो व्हाट वाज द लिस्ट प्राइस? सोमेश का 50,000. 50,000 का कितना बेचा? आधा. तो 25 पे प्रॉफिट 10%. 2500. So 27,500. Is this clear? So Monica to sales 27,500. Then equipments were purchased for 50,000. Entry should be equipments to cash. 24,750 ना. 2500 निकाला. 25. निकाला कि प्रॉफिट ऐड करने का. सर टीडी ना पिछली क्वेश्चन. अरे पर ऑन ग्रॉस प्राइस लिखा है ना. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. उधर क्या दिया है? Half of the goods purchased from Somesh were sold to Monica after charging 10% profit on list price. नॉर्मली प्रॉफिट किस पे चार्ज करते हो आप? कॉस्ट विच इज आफ्टर टीडी अमाउंट. कुछ नहीं दिया तो आफ्टर टीडी वाले पे ही करने का. बट इधर क्या दिया है? प्रॉफिट ऑन लिस्ट प्राइस. व्हाट इज लिस्ट प्राइस? ग्रॉस. ऊपर देखो ग्रॉस प्राइस क्या था सोमेश का? 50 का आधा 25,000 पे 10% प्रॉफिट लगाने का. तो कितना होता है? 27,500. गॉट इट? तो ये सब में पर्टिकुलरली बोला है लिस्ट प्राइस. सो यू एड इट टू लिस्ट प्राइस. ओके. देन इक्विपमेंट वर परचेज फॉर 50. तो इक्विपमेंट टू कैश 50. कैरेज पेड 2,000 ऑन अबव इक्विपमेंट्स. 52 लिखने. 52 सेम डेट है क्या? कैरेज और वो सेम डेट है तो बराबर है. इक्विपमेंट टू कैश 52. परफेक्ट. इक्विपमेंट टू कैश 52 क्लब कर दो. समझा? अलग अलग डेट होता तो 2 बार आता. इक्विपमेंट टू कैश, इक्विपमेंट टू कैश. वेडिंग एक्सपेंसेस 9,000 श्री वेंकटेशन में पेड थ्रू द बिजनेस बैंक अकाउंट. क्या होगा एंट्री? ड्रॉइंग्स टू बैंक. ड्रॉइंग्स टू बैंक 9. सैलरी पेड 750 पर एम्प्लॉई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. इधर बैंक. There were 5 employees working in the month of April, so it will be salary to cash. But how much? 3,750. 3,750. Perfect. Come to ledger. Ledger में भी इधर देखो लोचा मारा था NMBT भाई दोनों ने मिलके. हाँ ये वाला. From the following transactions, prepare necessary ledger accounts. Opening balance दिया है 2 का विजय एंड जोशी. अभी पास पेपर का ट्रेंड देख के सबको क्या लगेगा? कितना अकाउंट बनाने का है? 2 अकाउंट बनाने का. और 2 ही बनाने का था. वो लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक था. वो लोग अनाउंस नहीं किया और बाद में बोला कि सब बनाने का. अब वो 10 मार्क के सम में सब मिलाओगे ना तो 8 अकाउंट बनता है. 8 से 9 अकाउंट्स बनते हैं उस सम. तो कॉलेज सेड दैट. मिठी भाई ने बोला 2 अकाउंट. एनएम ने बोला, एक प्रोफेसर ने बोला 2 अकाउंट. दूसरे प्रोफेसर ने बोला 8 अकाउंट. अब वो कोई एचओडी वाला रहेगा चलने वाला. फिर सबको 8 अकाउंट. पूरा मिठी भाई को अपना करेक्शन चेंज करना पड़ा. सुप्रिया ही थी वो. रहेगी. हाँ भाई वो शायद सुप्रिया डॉन नहीं है थी. वो, डॉन. नहीं सुप्रिया बाद में आई. उससे पहले कोई था. टाइम नो वेस्ट. 2017 she came later. हाँ? टाइम लेफ्ट हो क्वेश्चन. एग्जैक्टली. It was a mistake on the part of the college, but they did not realize, they did not accept it later. तुम लोग खाली 2 ही अकाउंट बनाओगे तो चलेगा ये सब में. ठीक है. If you have made only 2 accounts, it is fine. Now, purchase goods worth 7,500 on credit from Vijay. Even if you have made all, it is fine. Practice हुआ है. और कौन बना?
बना है ना, सब बना है, दो अलग अलग दो ही बना है, सबने दो ही बनाए ना। दो यू आर का balance दिया। कॉमन सेंस वाला भी। नाउ परचेज goods of 7,500 on credit from Vijay and paid 350 carriage on. He paid carriage on our behalf. Entry should be purchase carriage to Vijay 7,500, 350 and 7,850. Is that clear? हमारा Silence. डाउट पूछ रहे हैं Issued a check to Vijay 7,800 in full settlement of 7,850. Entry should be Vijay to bank to discount received. Is that right? 7,850, 7,800 and 50 rupees. Received free samples worth 750 from Vijay. No entry. Goods returned to Vijay worth 500. So Vijay to purchase return 500. Joshi purchased goods from us. So Joshi to sale 7,000. Received from Joshi 1/7 of the amount due from him. This was a bit controversial. देखो इधर लोचा हुआ था. Received from Joshi 1/7 of the amount due from him. बैलेंस भी लेने का था इधर बैलेंस भी लेना पड़ेगा. ऑलरेडी जोशी में कितना बैलेंस था ऊपर? और उन लोगों ने 7,000 भी दिया था तो 1,700 सबको 1,000 लगा वो वही होता है. अब वो भी पता नहीं कॉलेज ने फ्रेम करने में लोचा मारा है कि नहीं, बट ये अभी स्ट्रेट क्वेश्चन है तो इधर कर सकते हैं. 8,000 का बैलेंस था ऊपर, कैन यू सी दैट, और 7 का बेचा है तो टोटल कितना होता है? 15 का 1/7, 15 का 1/7, 2 8 नहीं 2-1 15,000 का 1/7, दैट विल बी 2,857, 2,8 सॉरी 15,000 का 1-7 हाँ सॉरी 2-1-7-2 अरे 5 नीचे आएगा ना 152 2,857 नहीं करके देखो कितना है. अरे है ना मोबाइल 2143 2143 ना. हाँ 2143 is that. 15,000 divided by 7. 2143 हाँ 2143 8 तो फिर उधर 8 नहीं. हाँ 2-1-4 2143 yes 2143. but this was like a bit ऐसा ये भी अभी हो सकता है मिस्टेक, अभी नहीं किया है तो. टोटल चेंज हो गया सब चेंज हो जाएगा बट ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही करना पड़ेगा बॉस. देखो क्या दिया ट्रांजैक्शन, पढ़ो प्लीज रीड दैट. जोशी received from Joshi 1/7 of the amount due from him. Can you see that? Is it given that 1/7 for the sales made to him on particular date? जोशी को कब माल बेचा था हमने? 14 तारीख को. Is it given that 14th को जो बेचा था उसका 1/7 दिया? पढ़ो उधर. What is given in the question? 1/7 due from him. हेलो, ये ऑड फिगर आ रहा है इसके लिए तुमको थोड़ा तकलीफ हो रहा है. कभी राउंड फिगर भी आ सकता 40,000 होता था तो हो जाता. सो बोलने का मतलब बी अलर्ट. कभी भी अमाउंट ड्यू बोल रहा है, अमाउंट ड्यू कैसे पता चलता है आपको? डेबिट माइनस क्रेडिट. ओके, टेक एवरीथिंग इन डेबिट माइनस क्रेडिट. ठीक है, तो वो आता है आपको कितना? ऊपर का 8 और नीचे का 7, 15. 15 का 1/7 कितना होता है? 15 का 1/7 2143. सो कैश टू जोशी अगर 1000 लिखा तो कट करो 2143 आएगा. 2143 आएगा. इज दिस क्लियर? ये कॉमन मिस्टेक था, काफी लोगों से किया था. किसको आया बाय द वे 2143? किसी ने किया? नो वन ना. सर बैडेड और सब ओह सर उसने किया था सर किसने किया? यू डिड? वेरी गुड. कुछ से वो भी सोई नहीं वो जाग रहे. Joshi returned goods worth 1,000. What is the entry? Sales return to Joshi 1,000. Joshi is declared insolvent and 30% of rupees recovered from his estate. Then क्या आएगा आपका? अभी बैलेंस चेंज हो जाएगा जोशी में. सर आपने क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हमें
exactly. सबका 1000 ही है। लिखा है और तुम अभी याद रखना वो चीज, बैलेंस क्यों है तो टोटल पे लेने का, ठीक है। अभी उधर है ना, क्वेश्चन में खाली एक चेंज करो, वी रिसीव्ड क्वेश्चन किधर से 17 नोटबुक में लिख दो, वो क्वेश्चन के बाजू में कैश टू जोशी में, कैश टू जोशी जो एंट्री पास किया है ना, उसके बाजू में लिखो assumed 1/7 of goods sold on 14th. Assumed 1/7 of goods sold on 14th, मतलब 14 तारीख को जो बेचा था उसका 1/7 पैसा आ रहा है, बाजू में लिख दो assumed 1/7 of goods sold on 14th, ठीक है। ऐसा दिया होता तो 1000 आता, बट बैलेंस ड्यू दिया है तो फिर पूरा 15,000 का 2143, ओके। बाजू में लिख के रखो ब्रैकेट में 2143 भी, 15,000 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अभी चेंजेस नहीं करवा रहा हूं मैं, 1000 के हिसाब से करो। आपका एंट्री होगा कैश बैड डेट टू जोशी, कैश इज 2900, बैड डेट 9100 टू जोशी 13,000, इज दैट राइट। लेजर देख लो, विजय और जोशी का लेजर, विजय में आएगा टू बैंक 7800, टू डिस्काउंट 50, टू परचेज रिटर्न 500, टू बैलेंस सीडी 4500, और इधर बाय बैलेंस बीडी 5000, बाय परचेज 7500, बाय कैरेज 350, दैट वाज विजय। मिला। जोशी अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 8000, टू सेल 7000, बाय कैश 1, बाय सेल्स रिटर्न 1, बाय बैड डेट 9100, बाय कैश 3900, मिला। Total of Vijay is 12,850. Balance of Vijay is 4,500. Joshi में total is 15,000. Joshi में total is 15,000. Is that clear? Subsidiary books फटाफट देख लो। देखो, purchase goods from Hemant 4,000 at terms 10% TD. एक सेकंड सर, पीछे जाओ। क्या? लास्ट वाला सेटलमेंट एंट्री है बाय बैक डेट 9100, बाय कैश 3900, बैलेंस आएगा ही नहीं। हेलो, जोशी में बैलेंस नहीं आएगा, बाय कैश बाय अरे ये सेटलमेंट है, सेटल हो गया है, बैक डेट है वो। टोटल किधर से हुआ? 15,000 मिला? minus 2,000, 13,000 पे को Then, सेटलमेंट सब्सिडरी परचेज बुक बाद में आता हूँ, चलो देख लो। सब्सिडरी बुक्स देख लो। परचेज बुक हेमंत 3600 मिला, सोल्ड हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम हेमंत टू भरत 40% अबाउ कॉस्ट लेस 5% टीडी। अभी इधर ये वाला पूछना उसको, ये पेपर में भी राइट दिया था सबको, इधर पढ़ो। सोल्ड हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम हेमंत टू भरत एट 40% अबाउ कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो किस पे करने का अपने को? कॉस्ट प्राइस पे। तो सेल्स बुक में भरत विल बी 2394, सेल्स बुक में भरत विल बी 2394, क्या बराबर ना? 23% ऐड करके -5% टीडी करना है ना। हाँ, तो 2400 आएगा और -5% टीडी 120 आएगा ना, तो 2280 आना चाहिए। तुम्हारा प्रॉफिट ही रॉन्ग है। तुम्हारा देखो 20% 3600 इज द कॉस्ट, राइट? उसका हाफ करो 1800, 18 4 72, तो 720 रुपीज इज प्रॉफिट। वो सुप्रिया क्या बोली? 1800 पे 720, तो 2520 आया, 2520 पे 5% माइनस करो, 2394 आएगा। 2394 इज राइट। और इसमें तो ऑन कॉस्ट मेंशन्ड है। हाँ बोलो। हाफ गुड्स क्या है ये? दिया है वहाँ, हाफ द गुड्स दिया हुआ है। बॉट फ्रॉम नकुल गुड्स ऑफ 8000 एट 5% TD, सो परचेज बुक नकुल 7600 मिला। देन Bharat returned 1/4 of the goods sold to him. In return they were returned to Hemant. तो पहला सेल्स रिटर्न में भरत 599 आ रहा है। तो 598.5 हाँ, तो राउंडेड ऑफ टू हायर साइड। हाँ, वो भी वो सुप्रिया ने राउंड ऑफ भी ना बोला है, तुमको 0.4 0.25 0.3 वैसे ही रखने को बोला है। पूछ लेना कॉलेज में। वही का टोटल में 0.5
698.5. So make it 699. Okay. Then 599. Come on. Sales return में 599. Then the same way return to Hemant. So purchase return में Hemant 450. Is that clear? Purchase return में Hemant 450. Then come on, next one. Purchase office furniture credit from Venus Steel and Dealer. ये जाएगा किसमें? नोट में, JP. Shine company bought goods from us. Sales book Shine company 22,320. Sent a debit note of 2,500 to Nakul. Purchase return book Nakul 2,500. Received a debit note from Shine company. So sales return Shine company 4,000. Dara and company bought from us. So please don't talk. Sales book Dara and company 6860. Issued a credit note to Dara and company. So sales return book Dara and company 1,500. That's it. आपका totals purchase book total is 11,200. Sales book is 31,574. 32,114. क्या Sales book. अमाउंट्स देख ले 2394 22,320 6860 टोटल देख लो बराबर है 31,574 टोटल इज राइट करो परचेज रिटर्न इट इज 2950 एंड सेल्स रिटर्न इट इज 6099 इज दैट राइट हेलो टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न 6099 मिला आ जाओ कैश बुक पे फटाफट कैश बैलेंस 33,000 बैंक बैलेंस 7,000 टू बैलेंस बीडी कैश 33 बैंक 7 मिला रिसीव फ्रॉम प्रकाश 2,800 and a barrel check of 600 so to Prakash cash column 3,400 is that right goods sold for cash 5,700 and discount allowed 50 so to sales cash column will be 5,700 and 50 rupees will go in JP then check received on 3rd April is deposited into bank so to cash bank column 600 or buy bank cash column 600 contra tha then deposited into bank 3,800 वापस contract to cash bank column 3,800 buy bank cash column 3,800 then check received from Prakash returned dishonored so buy Prakash bank column 600 bank column 600 रुपया purchase goods from Ravindra 3,500 and 8% TD paid half the amount immediately buy purchase cash column 1,630 बाकी का जाएगा नोट में JP बैंक पेड 1950 as insurance so buy insurance premium bank column 1,950 check of 53